قرآن مقدس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے، تو تم پھر میرے نبی کی اتباع کرنا شروع کر دو، میرے نبی کی اطاعت کرنا شروع کر دو۔ ارشاد پاک ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں چاہنا شروع کر دے، تمہیں اپنا عزیز اور اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تو پھر میری اتباع کرنا شروع کر دو۔ اگر رب کے رسول کی اتباع ہم نے اور آپ نے کرنا شروع کر دیا تو رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت ہم کو دنیا کا جس طرح سے پہلے، کونین کا جس طرح سے ہم کو سب سے پہلے ہم کو سرداری عطا فرمائی، اسی طرح سے آج یہ سرداری ہماری طرف پھر لوٹ کر آنے والی ہے۔ آپ صدر اول کو دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بالکل دریغ نہ کیا، تو آج عالم یہ ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں سورج اٹھتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے، عمر فاروق کا نام لیا جاتا ہے، عثمان غنی کا نام لیا جاتا ہے، مولا علی کائنات، مولا کائنات کا نام لیا جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول پاک کے نام پر قربان کر دیا، اور جس نے بھی اپنے آپ کو اور اپنی ساری جائیداد اور اپنی ساری ملکیت کو رسول پاک کے نام پر قربان کرنا شروع کر دیا، تو پھر رب کائنات نے اس کے ذکر کو ایسا بلند کر دیا، ایسا بلند کر دیا کہ پوری کائنات میں آج اس کا نام لیا جاتا ہے۔ آج آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اٹھا کر دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب تک حضرت ابوبکر صدیق وابستہ نہیں ہوئے تھے، ہو سکتا ہے عرب کے چند لوگ، تاجر حضرات یا کوئی نسل کو جاننے والے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک کے دامن سے وابستگی کا اظہار کیا، تو پھر عالم یہ ہو گیا ہے کہ رسول پاک کے سب سے عظیم اور سب سے کریم جانثار صحابہ میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ جو تقریریں کر رہے ہیں، حضور کی محبت کا اظہار اور حضور کی محبت پر بیان کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ سب سے پہلی ذات جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا خطبہ پڑھا، جس نے رسول پاک کی اتباع کی تعلیم کے نام پر سب سے پہلی تقریر کی، خانہ کعبہ کے اندر وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور وہ عالم جبکہ ہر طرف سے کفر گھرا ہوا اور کافروں نے یہ سوچ رکھا ہو کہ اگر محمد یا محمد کی دین کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کی گفتگو زندگی کی آخری گفتگو ہوگی، اس کی زندگی موت میں تبدیل کر دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ یہ بتلاتی ہے کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق کو صرف مارا ہی نہیں، اتنا مارا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ابوبکر کی جان بھی نکل گئی۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ خاندان کے لوگ غصے میں اور یہ کہہ رہے تھے اگر ابوبکر صدیق کی جان نکل گئی تو جن لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچائی ہے ان کا برا انجام ہونے والا ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کو مارا گیا، پیٹا گیا، ذبح کیا گیا، خوب مارا گیا۔ آپ بے ہوش رہے، بستر پر پڑے رہے، لوگ ان کی زندگی کی دعائیں کرتے رہے۔ ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے بچے کی حفاظت فرما دے۔ ام جمیل ان کی والدہ کا نام ہوتا ہے۔ ام جمیل اپنے بیٹے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی خیرات مولا سے مانگتی ہے۔ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق بے ہوشی کے عالم میں ہے، بے ہوشی میں ہے۔ رات کے تیسرے پہر میں جب ذرا ہوش آیا ہے
आप सोचें, हमको और आपको अगर तकलीफ हो, होश आए तो हो सकता है हम पानी मांगे, होश आए तो हम हो सकता है अपनी जान की हिफाजत के सिलसिले में रब की बारगाह में सज्जे शुक्र अदा करें, मौला तूने जिंदगी दे दी। लेकिन कुर्बान जाए वो अबू बकर सिद्दीक थे, यारे गार थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर कर दी थी। जब उनकी सांस खुली है, जबान खुली है और उन्होंने पहला लफ्ज बोला है, तो वो ये नहीं बोला है कि दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ है, वहां तकलीफ है, बल्कि अपनी वालिदा हजरत उम्मुल जमील से कहा, माँ बे रसूलिल्लाह, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है। अल्लाह, ये ऐसे सहाबा, ये ऐसे जानसार की जान की पड़ी हुई है और जान जाने वाली है, लेकिन जरा भी इफाका हो रहा है तो रसूल पाक को पूछ रहे हैं और रसूल पाक की जिंदगी की खैरात मांग रहे हैं, मौला मेरे आका की हिफाजत फरमा दे। और आलम ये होता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के गिराफ को रसूल पाक ने इस कदर बुलंद कर दिया, इस कदर बुलंद कर दिया कि आका ने खुद इरशाद फरमाया, मैंने दुनिया में जितने लोग थे तकरीबन सबका हक अदा कर दिया है, हाँ मेरे अबू बकर सिद्दीक का मैंने हक अदा नहीं किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक का हक अदा फरमाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये आला मकाम कैसे मिला, कैसे मिला ये मकाम? तो शायर ने कहा, मोहब्बत को समझना है तो नासिह खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो नासिह खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। ये हजरत उमर फारूक हैं, कौन जानता था इनको। हजरत उमर खुद अपने बारे में कहते हैं कि मेरा आलम ये था कि मैं अपने बाप हजरत खत्ताब की बकरियां लेकर चराने जाया करता था। बकरियां 30, 35, 40 होती थी, उसके साथ कुछ और जानवर भी होते थे। एक जानवर को मैं उधर से हटाता, इधर से जानवर भागता, इधर से हटाता, उधर से जानवर भागता। घर पे आता तो जितनी बकरियां या जितने जानवर लेके जाता था, कुछ न कुछ उसमें कम हो जाती थी। मेरे बाप मेरे चेहरे पे घुसा मार के कहते, ऐ उमर क्या किया, तुमसे ये बकरियां भी नहीं संभाली जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर कहते हैं, मेरे बचपन में मैंने जब तक रसूल पाक के दामन से वाबस्तगी नहीं इख्तियार की थी, मैं बकरियों को समेट नहीं पाता था। आज रसूल पाक की मोहब्बत का सदका है कि पूरी कायनात में अगर किसी का सिक्का चल रहा है तो वो उमर का चल रहा है। ये भी सदका है सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का, हुजूर पाक से मोहब्बत का। इस मकाम पर मैं आपको अर्ज करूं, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि अब क्या होगा, और दूसरे लोग सोचते हैं कि अब इनको समझ में आएगा, अब इनको समझ में आएगा। आज की हालत भी, आज हमारी हिंदुस्तान की हालत भी ऐसे ही है। मुसलमानों पर रोक तारी कर दिया गया है और हमारा मद्दे मुकाबिल ये सोचता है कि हम बहुत जरी हैं, जो भी चाहेंगे कर जाएंगे। ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो और मेरी बात अगर हो सके तो वहां तक पहुंचा दी जाए। तुमसे बड़े बड़े भी, और इतने बड़े जिनके बड़प्पन का आलम यह था कि उनकी ममलकत में सूरज गुरूब नहीं होता था और अपने आप को वो खुदा भी कहलवाते थे, और आलम ये था कि तुमने 10, 20, 50 मुसलमानों को शहीद किया होगा। उनका आलम तो ये था कि वक्त के साथ ही जितने भी बेटे पैदा हो रहे थे उन्होंने सारे बेटों को तहे तहे किया था। अल्लाह अल्लाह, आपने तारीख नहीं पढ़ी, आपने तारीख का वो वाकया नहीं सुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के जमाने में फिरौन ने बाकायदा ऐलान करवा दिया था कि वक्त में, इस वक्त में जितने भी बेटे पैदा होंगे सबको तहे तहे कर दिया जाए, बेटियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही, अल्लाह करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को बातिल की कुव्वत को तोड़ने वाला ऐसा नबी बनाकर भेजा कि वो नबी जब आते हैं, तशरीफ ले आते हैं, तो उनके साथ कोई बहुत लंबी चौड़ी फौज नहीं थी। एक डंडा, एक असा था
اور रब कायनात की तरफ से कुछ मोजज़ात थे और इन मोजज़ात ने वो कमाल किया कि मैंने तारीख पढ़ा, तकरीबन 15,000 जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया था और उनके साथ भी फिरौन भी था, ममलकत की ताकत भी थी, इख्तियार भी था, इख्तियार भी था, सब कुछ था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तक चाहा फिरौन की ममलकत चलती रही और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर न हुआ तो फिर इरशाद फरमाया गया, फंतकमना मिनहुम व अगरकनाहुम फिल यम बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। इन्होंने जब तक चाहा सरकशी कर ली, हमारे बंदों को कत्ल किया, हमने कुछ न कहा, हमारे रसूलों को इन्होंने तहत करना चाहा, हमने कुछ न किया। लेकिन आज ये पूरे इस्लाम को और पूरे मजहब को अपने पैर की जूती समझ रहे हैं। ऐ लोगों, होशियार हो जाओ, बाखबर हो जाओ और बाखबर होके देख लो, रब्बे कायनात का फरमान आता है, फंतकमना मिनहुम, हमने इनसे इंतकाम लिया। और जब इंतकाम अल्लाह का आता है तो खुद वो फरमाता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर छूटने नहीं देता है, छूटने नहीं देता। वो फिरौन जो सोच रहा था कि सारी ममलकत हमारी है, हम जिस तरह से चाहेंगे तसर्रुफ करेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने साथियों को लेकर समंदर की तरफ जाते हैं और समंदर के करीब पहुंचते हैं। इधर से फौज भी आती है, फिरौन की फौज आ रही है, फौजी 6 लाख की सूरत में है या एक रिवायत में 15 लाख की सूरत में फौज हो, शोरो गुल हल्ला सब कुछ हो रहा था कि आज हम इन इसराइलियों को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी दुनिया इनके इबरत को देखा करेगी। लेकिन अंजाम क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम के चाहने वालों ने यही कहा था, इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये जालिम हमारे पीछे आ गए हैं, अब हमारा हश्र बुरा होने वाला है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने जो सदा बुलंद की थी, आज भी वो सदा हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारी जबान पे होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, कल्ला इन्न रब्बी सहदीन, घबराओ नहीं, रब्बे कायनात की मदद हमारे साथ है। हाँ, तुम्हारे अमाल जरूर बुरे होंगे, लेकिन जब रब का महबूब और रब का अजीम नबी कह रहा है तो फिर तुमको फना नहीं है, तुमको भी बका होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको गरकाब कर देगा, इनको समंदर में डुबा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा था, लाठी आपने समंदर में मारा, 12 रास्ते बन गए। रास्ते से तमाम के तमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले गुजर रहे हैं। आप सोचे तो सही, समंदर हो, दोनों तरफ से पानी बह रहा हो, बीच में रास्ता हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता आम हालात में। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आती है तो फिर ऐसा ही होता है। और 313 के नौजवान भी हजारों पर भारी नजर आते हैं। 6 लाख इसराइली थे जो समंदर से गुजरते जा रहे थे और 15 लाख का लश्कर भी पीछे पीछे आ रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम और उनके जितने साथी थे सब देख रहे हैं कि हम आगे बढ़े जा रहे हैं, ये भी पीछे से चले आ रहे हैं, ये भी समंदर के रास्ते से गुजरते हुए आ रहे हैं। ये कहते जा रहे हैं, हुजूर ये पीछे आ रहे हैं। हजरत मूसा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत करने वाला है। ये सब के सब निकल गए और जैसे ही बाहर समंदर से निकले मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुक्म से समंदर को फिर एक जैसा ही कर दिया जैसा वो पहले था। और वो लोग जो सोच रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों का खात्मा कर दिया जाए, रब्बे कायनात ने उनको ऐसा पानी में गरकाब किया, ऐसा डुबो दिया कि उनकी तारीख भी आज हमारे सामने मिलती नजर नहीं आती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी, आप सोचें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये तारीख तो बहुत पुरानी हो गई। जरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ तो मैं आपको दिखाऊं। यकीन अगर मुहकम हो, आपका ईमान मजबूत हो तो रब्बे कायनात की तरफ से मदद जरूर आती है। इसी वजह से किसी ने बहुत पहले कहा था, यकीन मुहकम
अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को पहुंचाने के लिए कितनी दिक्कतों और मशक्कतों का सामना किया है, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये कहने की बुनियाद पर कि अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ ये कहने की बुनियाद पर कोई चादर आपके गले में डालकर और चादर को तान देता है, खींच देता है ताकि आपका गला घुट जाए। अल्लाह अल्लाह, वो नबी लेकिन बद्दुआ नहीं कर रहे हैं। कभी आप नमाज की हालत में है, कोई जालिम आता है और ऊंट की बड़ी भारी भारी उजड़ियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर रख देता है, आप बद्दुआ नहीं फरमाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में है और अल्लाह रब्बी का दर्स देने के लिए, दीन की बातें सिखाने के लिए तशरीफ ले गए हैं, लेकिन जालिमों ने क्या किया, अपने गुंडों को लगाया, अपने जालिम दोस्तों और बच्चों को लगाकर कुछ पैसे दिए और कहा इस नौजवान को या इस मजनून पागल को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तुम मारोगे, तुम्हें पैसा दिया जाएगा। आज तारीख ये बतलाती है रसूल पाक ताइफ की सरजमीन पर गए और उनको इस कदर मजलूम ठहराया गया, इस कदर उनके ऊपर जुल्म किया गया कि आपके जिस्म से बहने वाला मुबारक खून आपके जूते मुबारक पे आ गया और जूते मुबारक पे आपका खून भर गया। हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर कहा था, अल्लाह के रसूल अगर आप कह दें, आप सिर्फ इशारा कर दें तो फिर ये फरिश्ते हाजिर हैं, ये फरिश्ते हाजिर हैं, अभी ये फरिश्ते इन पहाड़ों को मिला देंगे। जिन लोगों ने आपके ऊपर जुल्म किया है उनका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन कुर्बान जाए हमारे और आपके आका, हमारे और आपके नबी ने उनके हक में बद्दुआएं न की, बल्कि इरशाद फरमाया नहीं रहने दो, ये मेरी उम्मत है, अभी समझ नहीं रही है, कल को यही उम्मत आएगी जो मेरे नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। और फिर दुनिया ने देखा उसी ताइफ की सरजमीन पर, उसी मक्के की सरजमीन पर, उसी मदीने की सरजमीन से ऐसे ऐसे नौनहाने इस्लाम पैदा हुए जिन्होंने रसूल पाक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनको जब कैद कर लिया जालिमों ने, काफिरों ने, तो कहा था कि ऐ खुबैब तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हजरत खुबैब ने कहा अगर हम किसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो तुम सोचोगे कि मैं तुमसे जिंदगी कुछ मोहलत चाह रहा हूं। नहीं, मुझे कोई मोहलत नहीं चाहिए, जब तक जिंदगी रहेगी रसूल पाक के नाम पर रहेगी और जब ये जिंदगी जाएगी तो रसूल पाक के नाम पर जाएगी। कहा सुन लो, हम तुम्हें बहुत नहीं जिंदगी की खैरात देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें जिंदगी दे देंगे, सिर्फ एक चीज करनी होगी, एक कलिमा कहना होगा, एक लफ्ज बोलना होगा और तुम्हें जिंदगी दे दी जाएगी। हजरत खुबैब ने कहा बोलो क्या कहना है? उन्होंने कहा तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे दो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम मोहम्मद अरबी को गाली दोगे, हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीना चौड़ा किया, हाथों को बुलंद करके इरशाद फरमाया, ऐ जालिमों सुन लो, गाली देना तो बहुत दूर की बात है जिससे रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी। सुनो, अगर मेरी बोटी बोटी काट डालो तब भी मेरे हर बोटी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की सदा आएगी। और इसी मौके को देखते हुए शायद ने कहा था मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। और तूफान कर रहा था, हजरत खुबैब कहते हैं तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। और आपने गोया बबागे दुहल ये ऐलान फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, पूरी तारीख में अगर कोई शख्सियत सबसे आला सबसे अल्फा नजर आती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक इशारे पर, ऐसा नहीं कि औरतें अपनी जान दे रही हो, नहीं, औरतें नहीं, मक्के के अरब और वो अरब जिनको अपनी जान बहुत प्यारी थी,
किसी भी शय के मुकाबले में वो अपनी जान को सबसे ज्यादा अजीज समझते थे। हुजूर ने हजरत उमर से भी तो पूछा था, अरे उमर तुम्हारे नजदीक सबसे महबूब चीज कौन सी है, कौन सी है? हजरत उमर ने भी एक वक्त कहा था, हुजूर मेरे नजदीक मेरी जान, मेरी अपनी रूह, मेरी अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। पता ये चला जिस तरह से आज हम अपनी जिंदगी को अपना सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं, उस जमाने के लोग भी अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा सरमाया समझते थे। लेकिन हुजूर पाक ने फरमाया, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है ऐ उमर, अभी तुम्हारे ईमान में कुछ नुक्स है। चंद लम्हे के बाद या चंद दिनों के बाद हजरत उमर को यह समझ में आ गया कि ये जान भी तो हुजूर के सदके है। अगर ईमान मिला है तो हुजूर के सदके है, कुरान मिला है तो हुजूर के सदके है, हुजूर पाक अगर मिले हैं तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। अगर सब कुछ हुजूर के सदके में मिल रहा है तो फिर ये जान हमारी हुजूर के नाम पर कुर्बान होगी। हमारी जान कीमती नहीं है जितनी कीमत हुजूर पाक की इज्जत की है। और हुजूर पाक की इज्जत पर हजरत उमर ने अपनी जान को कुर्बान करते हुए इरशाद फरमाता, हुजूर आपकी ये जात, आपकी ये शख्स मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, जान से भी ज्यादा अजीज है। आप तारीख उठाकर देख लें, ऐसे ऐसे मौके आए हैं जहां पर कोई अपने बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जहां पर कोई अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग अपनी अपनी जानों की खैरात मनाया करते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश किया करते हैं। हजरत हंजला का वाकया देख ले, अपनी बीवी के बिस्तर पर सुहाग रात की रात में लेटे हुए हैं, लेकिन रसूल पाक की निगाह होती है, आवाज आती है, अपने बिस्तर को छोड़ा, उसी हालत में जनाबत की हालत में अपनी बिस्तर अपनी बीवी को छोड़ा और कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, अगर जिंदगी रही तो कयामत के दिन फिर तुमसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुझे ये कह लेने दिया जाए, अगर कल को अल्लाह के रसूल ने कयामत को मुझसे ये पूछ लिया कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह मेरी वजह से हुआ था, तुम ईमान मेरी वजह से पाए थे, और जब मेरी निदा आ रही थी तो तुम कहां बैठ गए थे, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? शरीके हयात ने भी ये नहीं कहा आप रुक जाइए, आज तो पहली रात है, फिर चले जाइएगे। नहीं कहा, आप जाइए, आप जाइए। कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कयामत के दिन मैं भी सुरखरू होकर कहूंगी, हाँ या रसूल अल्लाह, ये आपके शहजादे हैं, ये आपके गुलाम हैं, ये आपके खादिम हैं और मेरे शौहर हैं, मैंने इनको रोका नहीं था, इनको आपकी राह में लगा दिया था और मैं भी सुरखरू नजर आऊंगी। अल्लाह, ये एक हंजला है, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मैंने एक तारीख का एक वाकया ये भी पढ़ा, एक माँ ने 6 साल के बच्चे को हुजूर पाक की बारगाह में पेश कर दिया और कहा, हुजूर आज हमारे घर में कोई और बंदा मौजूद नहीं है, हमारे शौहर हैं जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, हमारे पास ये 6 साल का एक बेटा है, हुजूर इसको कबूल फरमा लीजिए, आप मार्के में जा रहे हैं, इसको भी लेते जाइए। हुजूर जब बड़ी बड़ी लकड़ियां जलानी होती है तो फिर उस वक्त छोटी लकड़ियों को पहले इस्तेमाल किया जाता है। हुजूर अगर ये मेरा बच्चा कहीं काम आ जाए तो इसको आप रख लें, ये काम आएगा। और कल मैं भी कहूंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर अपनी जान लगाने वाले और उनकी जिंदगी पर अपना सरमाया लुटाने वालों में मेरे शौहर भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी, मेरा बेटा भी कुर्बान हो गया था। अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 6 साल का नौनिहाल पेश किया गया। हुजूर पाक ने मोहब्बत से उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और इरशाद फरमाया, ऐ खातून अपने इस बच्चे को ले जाइए, मैंने इसकी गाजी होने को कबूल कर लिया। कल कयामत के दिन जब आप आएंगी तो इसको भी गाजियों के सफ में रखा जाएगा और आपको एक गाजी की मां कहकर पुकारा जाएगा। अल्लाह, कैसे वो लोग थे जो जान के मुकाबले में रसूल पाक की इज्जत को ज्यादा अजीज रखते थे। आज हम हैं कि रसूल पाक की इज्जत हमसे नीलाम होती जा रही है। हम रसूल पाक की इत्तिबा नहीं करते, सिर्फ इत्तिबा का दावा करते हैं। अगर हम इत्तिबा करते हैं तो बताओ तो सही, क्या रसूल पाक के दुश्मनों को हम अपना दोस्त रखेंगे? क्या रसूल पाक ने जो फरमान फरमा दिया है हम उसको बलाए ताक रख देंगे? नमाजें आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे आज हम नहीं रख रहे हैं, और हमारे नौजवान जो शहरों में जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इनके अखलाक में कमी होती नजर आ रही है। कभी जिना के अड्डों पर ये नजर आ रहे हैं, कभी जुआबाजी ये करते नजर आ रहे हैं, और मैंने तो बहुतों के बारे में सुना ये शराब नोशी भी कर रहे हैं। शराब पीना इनके लिए कोई मायूब चीज नहीं रही, कोई बुरी चीज नहीं रही। अरे यार, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है।
तुमने एक बार शराब पी लिया तो फिर तुम्हारे अंदर वो सारी बुराइयां करने का जज्बा पैदा हो जाएगा जो आम हालत में तुम नहीं करते थे। इस वजह से आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हो जाइए। यकीन कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह से हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में सदर अव्वल के मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई थी, वो इज्जत आज भी हमको अता हो सकती है। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रब्ब कायनात हमको और आपको हुजूर पाक की सही सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए और हुजूर पाक के फरमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को इज्जत, आफियत और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। खूब की सरे चमन फूल जो निशात रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन चिरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।